अस्सलाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात शेयर की हैं। वो तफसीलात क्या हैं, आइए देखते हैं। वे जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जा अज तो मैं तेरी तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया लाल हो मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया लाल प्यार मैं करा प्यार तू करे तेरे जिया दूजा मैनू नहीं हो लबना वे जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जा अज तो मैं तेरी। मिस्टर ट्रंप अब मेलानिया से होने वाली गुफ्तगू बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो चीनी सदर से गुफ्तगू हुई है उसकी तफसीलात बताएं। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਲਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। वाह एक्सक्यूज मी, उसने कहा था कि अमेरिका और चीन को दोस्त और बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। चाचा ट्रंप का तो कहीं जिक्र नहीं। ओ भोले बादशाह ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ और ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा, अगर इतनी दोस्ती हो गई है तो फिर ये भी बता दें कि बात क्या हुई थी। ऐ होई वे जा अजी तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जा अजी तो मैं तेरी तेरे जे मैं कितरे ਕਬਲ ਜਈ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਫਟਾ ਟਾਪ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਯਾਰ ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਹੀਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਸਦਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੀ 'ਚ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੂਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਸੁਣਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਧੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੁਪੇ ਆ ਆਂਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਤੀ ਬੂਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਖੜਾਕ ਗਾਣ ਡਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਪਰਾਉਣੀ ਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਡੱਡੂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਟੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣ ਦੇ ਇਕਬਲ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ।
अच्छा ट्रम्प साहब बिजनेस की कोई बात नहीं हुई? ਉਹ ਪੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਫੂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਆ। वाह ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1.5 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣ ਡਏ ਆ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਉਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। हाय ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाय ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕ ਸਦਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਉਣ ਡਏ ਆ हाय ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ $4 ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੇਮੁਰਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਮੁਰਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਡਾ ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਈ ਆ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ हाय ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਵੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਇਹ ਤੇ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇਗਾ हाय ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਸੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਾ ਐਡਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਡੋਰ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਗੁੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਫੂਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੇਰਾਂਗਾ हाय ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ 2 ਤਾਵੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਆ ਤੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸਰ ਜੀ ਟੁਰ ਚਲੋ ਸੁਣਿਆ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਲਿਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਧੱਕਾ ਰੋਂਦਾ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨੂੰ हाय ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ हाय ਸਰ ਜੀ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ हाय ਉਹ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੋਚਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ हाय ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਚਾਚੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਮੁੜ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ओह ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ क्या ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ हाय ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ओह ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਬੂ ਜੀ
ਤੇ ਜੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਰਾ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲ 4 ਛੇਤਰ ਵੀ ਖਾਓਗੇ। ਏਡੇ ਛੋਹੇ ਆ ਬੇਜਰਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਐ ਉਂਝ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੌਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜਾਜ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਈ ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਤੋं के भूत बातों से नहीं मानते। तो ट्रम्प साहब, ये तो उर्दू मुहावरा है और ये यहाँ बोला जाता है, ये हमारा मुहावरा है। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੰਪੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚੂਸਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਡੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਮੋਟਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚੋਂ ਅੰਡਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਡਬ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਰਫਖਾਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਅੰਡਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਬਰਫ਼ਖਾਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਰ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਤੂੰ ਡੰਗਰਾ ਸਿਰਫ ਖੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ। ट्रम्प साहब, आपको क्या जुनून चढ़ गया? क्यों कब्जा करना चाहते हैं आप ग्रीनलैंड पे? ਉਹ ਪੁੱਤ ਆ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੰਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉੱਤੇ ਚੈਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਪਸ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੇ ਨਾਮ ਰਾਦ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੈਗ ਪੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਚਵਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਫੜਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਆਡੀ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ। ਸਰ ਨਾਲ 4 ਅੰਡੇ ਵੀ ਵਧਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਪਹਿਲੇ 2 ਖਾਣਾ ਨਾਮ ਮਰਾਦਾ, 4 ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅੰਡੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਛੂ ਕੁਮੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਨੋਬਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਓ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। सही गल है अली साहब, जिथे भी जंग लगी है साढ़े सारों रा नहीं आगे होके छुड़ाई है। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੋਏ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। यार आप ट्रंप का गुस्सा उस बेचारे पे क्यों उतार रहे हैं? ਓਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚਾਚੀ ਖੇਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁਰਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਰਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਧੂਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਓ ਰੋਂਦਾ ਜੰਗਾਂ ਰਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਪੱਤੀ ਸੌਕਣ ਅੰਗਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਯਾ ਇਹ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ ਗਿਆ। ईरान दे मगर चीन ते रूस खलोते ने, एवें ईरान को बिच धोवेगा। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਕ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੱਸ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ। चलो सौने ते खाबा आउंदियां ना, तेरियां ते नींदां ही उड्डियां ने। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਾਬ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਆ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਤੇ ਮਲੀਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਆ $5 ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਬ ਹੈ? ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ 7.5 ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਲਜਲਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੀਂਦਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਖਾਬ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ। ਹਾਏ ਆ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਸਦਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਓ ਆ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਭੇਜਤਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਗਮ 'ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਆ ਵੇਖ, ਆ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਫਿਲਮ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ। ਆ ਹਾਲੇ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਫਿਲਮ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਟੁੱਟਣੇ। ਉਹ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जानवरों में सिर्फ बंदर अच्छी तस्वीर बनवा सकता है। अच्छा बंदर की तस्वीर खींचने लगेंगे उसने और तैयारी पकड़नी है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। डायरेक्ट न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज आपको खबर सुनाने वाला है, उससे पहले जरा एक बात करना चाह रहा हूँ। हम वो कौम हैं जिसका आज तक पूरा बायोडाटा गवर्नमेंट को मैसर नहीं है। हाय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर शनाख्ती कार्ड के फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा। जी वो बेचारे पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो खुद पोर्ट पास होके वापस आ जाते हैं। इस तरह के जो अपना खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा, अपना खदशात नहीं यहाँ कहना चाहिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। मगर लोग जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं, दूसरे ममालिक में कितनी तरक्की हो चुकी है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी
खबर कुछ यूं है, सऊदी अरब में ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। लो इस ऐलान का मकसद कीमती ऊंटों के रेवड़ों का बेहतर इंतजाम और निगरानी करना है। अरे वाह वजारत की जानिब से जारी करदा पोस्ट में सबज रंग के पासपोर्ट पर सऊदी अरब का कौमी निशान और सुनहरी रंग में ऊंट की तस्वीर नुमाया तौर पर बनी हुई है। हुन सुनाओ, अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता ऊंट को कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। वो तानु पासपोर्ट वहा के कहेगा भाई जी जिधर मेरी फोटो लगी है ना ए बारी मेरी कल सीधी है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ जी, वो पहाड़ के नीचे आने तो पहले अपना पासपोर्ट काट लेगा। तुसी फिर कहोगे कि ठीक है भाई जी लंघ जाओ। यार ये तो कमाल है कि अब ऊंटों के भी पासपोर्ट बनने शुरू हो गए। गोगा इसलिए खुश हो रहा है कि अब जानवरों के पासपोर्ट बनने शुरू हो गए हैं, अब मेरा भी बन जाएगा। जरा ये टेंशन होगी गोगे की कि इसका भी चूंकि सबज पासपोर्ट होना है जी और ऊंटों का भी सबज पासपोर्ट बन रहा है। हाँ। तो जब ये गोगा हवाई जहाज पे सफर करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेगा तो एयरपोर्ट का अमला सोच ही पड़ जाएगा कि इनू हुण असीं ऊंठां वाली लाइन च खिला रही है या बंदियां वाली लाइन च। फिर कोई सीनियर बंदा आके कहेगा भाई जी ऊंट एडा गिट्ठा नहीं हुंदा, इनू बंदियां वाली लाइन च खिलारो। यार मुझे तो ये मजा आ रहा है कि ऊंटों के पासपोर्ट बनने शुरू हो गए हैं जी। अब एयरलाइन के मुसाफिर जो हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे कि उनकी बराबर वाली सीट के ऊपर ऊंट भी बैठ सकता है। और अगर कोई बेचारा छोटे कद का मुसाफिर ये फील करे कि यार मुझे आगे से नजर नहीं आ रहा, तो बड़े आराम से उठ के पहले ऊंट को बिठाए फिर उसके कुआन के ऊपर आप बैठ जाए। कितना जबरदस्त सीन होगा कि ऊंट अपना खाने पीने का चारा जो है वो कैबिन में रखवा देंगे हाय। और जहाज में से मिलने वाला खाना खा के जुगाली करेंगे। ऊंट को तो वैसे ही सहराई जहाज कहा जाता है, अब सहराई जहाज हवाई जहाज में सफर करेगा। जी जनाब, और अल्लाह ना करे किसी फन्नी खराबी की वजह से अगर हवाई जहाज को सहरा में उतारना पड़ा तो ऊंट को लोग कहेगा कि उतार लो अपना ही इलाका है। वैसे ये शुगल मेला अपनी जगह, मगर असल बात यह है कि ऊंटों के कई मुकाबला जात मुनाकद किए जाते हैं। ऊंटों की रेस होती है। जी बिल्कुल। फिर ऊंटों का मुकाबला हुस्न होता है। अच्छा। ऊंटों का मुकाबला हुस्न मुनाकद होता है। वाह। हाँ जी, और ऊंटों की बाकायदा कोई शनाख्त जरूरी है। इसलिए फिर अरबियों ने सोचा है कि ये ऊंट का पासपोर्ट बना दिया जाए जो शनाख्ती कार्ड के तौर पर काम करे। आप जानते ही हैं कि ये यूरोप में, अमेरिका में बहुत से जो ममालिक हैं वहां पे बिल्ली या कुत्ते जो हैं जी जी। उनका भी कार्ड बनता है। अच्छा जी, उनकी शनाख्त के लिए जब उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या किसी रेस में लेके जाते हैं या किसी मुकाबले में लेके जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पासपोर्ट साथ लेके जाते हैं। अच्छा इंतजामिया वाले कह देते हैं कि भाई जी आपकी बिल्ली का चुके कार्ड नहीं है, क्या इस वास्ते अपनी बिल्ली चुको तो इन घर जाके प्याली च दूध पाओ चलो। यार जेम्स बॉन्ड, ये कोई नई चीज तो नहीं है। यूएई में उकाबों का पासपोर्ट बनता है, आयरलैंड में गाय का पासपोर्ट बनता है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। यहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने जानवरों के शनाख्ती कार्ड जारी करने का ऐलान किया था, फैसला किया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद ये मामला मेरा ख्याल है 2017 से खटाई में पड़ा हुआ है, ओहो। जिसकी बुनियादी वजह गालिबन ये है कि हमारे यहाँ इंसानों को पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। जी। जानवर बेचारा जाके एजेंट नु की कवे। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत ने ये जो मामला है ना जानवरों के पासपोर्ट वाला, जी ये इसलिए रोका हुआ है या खटाई में पड़ा हुआ है ये मसला जी जी। कि यहाँ तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जानवरों के अगर पासपोर्ट बनने शुरू हो गए तो जानवरों के दफ्तरों को कैसे मैनेज किया जाएगा। हाँ जी। हाँ हाँ, अब घोड़ा या गाय बेचारा कहाँ अपने पासपोर्ट के फार्म फिल करके तो 17वें ग्रेड का अफसर ढूंढता फिरे फार्म टेस्ट कराने के लिए। यहां भी इधर कोई ना कोई मसला निकल सकता है। घोड़ा बेचारा अपना फार्म टेस्ट करा के 17वें ग्रेड के अफसर को लैके जाए क्या
ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ, 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਜ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹੀ ਪਰਤਾ ਲਵੇ, ਊਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਊਂਟ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ करके ਲੱਕ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। हाँ, वैसे इस हिसाब से तो मेरा ख्याल है जानवरों में सिर्फ बंदर अच्छी तस्वीर बनवा सकता है। अच्छा, बंदर की तस्वीर खींचने लगेंगे उसने और तैयारी पकड़नी है। अजीजी कुछ होश पकड़ो, तुम दानिश्वर हो, बंदर नहीं। यार खींच लिया, हुण अगले जुगतां करन लग पे ने। फोटोग्राफर बंदर की फोटो खींचे, बंदर का 1 मिनट जरा। जानवरों के अगर इधर पासपोर्ट बनने लग गए तो फिर हम घर आके क्या करेंगे? बनवान गया हाँ पासपोर्ट, वो लैन च खलोता सा, घोड़े ने मैनू दलती कड मारी है लग। कोई बंदा आके कहेगा यार चंगे पड़े मैं अच्छे कपड़े पा के गया हाँ पासपोर्ट बनवान, ताकि फोटो शोटो भी खिंचनी है। क्या? वो बांदर ने मेरी शर्ट ही पाड़ दी। मैं फिर उन्होंने कहा मैं यार तू बनवा लिया भाई, मैं नहीं बनवाता, तू बनवा। फिर और बहुत से मसाइल अली मुमताज साहब जहां पैदा हो जाएंगे जानवरों के पासपोर्ट बनाते हुए। जी। शनाख्ती अलामत कैसे लिखेंगे आप बांदर की? हाँ, ये हो सकता है कि उसकी पूंछ नाप के लिख दी जाए, 13 इंच पूंछ, 7 इंच पूंछ, 2 इंच पूंछ। इस तरह हम इंसान आके इतराज करते हैं ना कि पासपोर्ट ऑफिस में तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, इतनी गर्मी है। हाँ। इस तरह फिर जानवर भी आके इतराज करेंगे। घोड़े कहेंगे भी क्या दफ्तर बनाया पासपोर्ट का, अंदर घास ही नहीं लगा, खाएंगे क्या? हाँ जी, बांदर भी कहेंगे भाई जी तो कुछ सीखा ही नहीं बंदा किनू फड़ के उत्ते चढ़ के उतरोगे। ना उसे कोई छलियां बेचने वाला नजर आंदा है। लो, ऊंटों ने बड़ा इतराज करना है, उन्होंने कहना है कि जे ऊंटां दे पासपोर्ट बनाने हो ना तो फिर बूहे उच्चे रखी देने। और पासपोर्ट बनवान गया सीधा मेरा मुंह चुगाट च वजा है। फिर मैं मुड़ के अपने बच्चों ने कहा कि सिर नीवा करके आना यार। वापस जाओ भाई, वापस जाओ, वापस। थैंक यू, सॉरी भाई जी, लाइन बड़ी लंबी सी इस वास्ते अगे जा रहे हैं। बेशुमार मसाइल आ सकते हैं, मसलन जानवर की वल्दियत वाले खाने में कौन सा नाम लिखा जाए? ये तो हो नहीं सकता ना कि बंदर वल्द बंदर। ये तो फिर अगले कहने तुहाडे दुआई चो पुत्र केड़ा ते प्यो केड़ा है। लिखना पड़ेगा कि नाम बंदर, वल्द वड्डा बंदर, कौम लाल नक वाले, शनाख्ती अलामत पटोसी, मुस्तकिल पता मोहम्मद शफी मदारी का घर। और जो बेचारे जंगली बांदर होंगे वो मुस्तकिल पते के आगे लगाएंगे कि 13 नंबर टाली या 12 नंबर जामनू का दरख्त। असल से आपा तो पड़ेगा कुत्तों के पासपोर्टों पे पाकिस्तान। उन्होंने बेचारियां ते नाल नस्ल भी लिखानी पैनी है, जितनी वैरायटी है कुत्तों में। हाँ। अब हर कुत्ते के आगे सिर्फ नस्ल के आगे कुत्ती नस्ल तो नहीं ना लिखा जा सकता। वो स्यापा पड़ जाएगा उधर दफ्तर में। अगला कहेगा भाई जी मेरा जर्मन शेफर्ड है, अफसर कहेगा ने हजूरे दे कान ढिले ने डग गए। कोई बंदा अपने कुत्ते का दसेगा जी ये बूली है, अफसर कहेगा बूली का तो एडा मुंह हुंदा है, एडा को मुंह तो ओदा हुंदा ही नहीं। वो बेचारा कहेगा हजूर 5-6 महीने बीमार रहे इस गलो इहदा मुंह निका हो गया। अफसर अगो साहब कह देगा चलो फिर इहदा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ। चुप लोकी बेचारे उत्थे तरले करनगे हजूर बना दिओ साडे कुत्ते दा पासपोर्ट, तुहाडी मेहरबानी। हर लंघदा जांदा बंदा इहनूं रोड़ा मारदा इहदा पासपोर्ट बनवा दिओ। वो रोड़ा मारन लगे अगो पासपोर्ट कढ के वहाए किसे ते रोप ते पवे ना। तुहानूं पता है पाकिस्तान है, इत्थे ते एवें शुगलन ही इहनूं बेचारे नूं रोड़े मारदे ने। अफसर ने कहा ओके चलो बताओ मुझे इसकी शनाख्ती अलामत क्या है।
अजी पिछले सजे पैर तो मोटरसाइकिल लंगी है। ये रिवाज अगर आहिस्ता आहिस्ता जंगलों की तरफ भी चला गया, जंगल के जानवरों के भी गवर्नमेंटों ने पासपोर्ट बनाने शुरू कर दिए, हाँ जी। तो उत्थे तो जानवरों दी मौजा लग जाएंगी। जानवर ये जो जंगल है ये तो कई कई मुल्कों में फैले होते हैं। हाँ। कीनिया का चीता अपनी बेगम ने कहेगा मैं यार तंजानिया तो आवा, बेगम अगो लड़ेगी उधर की करन जाना जी, एवं बॉर्डर तो फड़े ना जाना, एवं फड़े जाना, मैं पासपोर्ट बनवाया है। चीता जब वापस घर आएगा भरजाई पूछेगी कि की लेके आए हो तंजानिया तो मेरे लिए, चीता को दसेगा कि करमालिए तेरे लिए मैं तंजानिया तो छोटे ही रंदा गोश्त लेके आया, मैनू पता तेरिया दाड़ा लगई ने, छोटे ही रंदा है आराम ना खाता जाएगा। ऐसे अगर पासपोर्ट बनने भी लग गए जानवरों के जंगलों के अंदर भी, जी जी, तो बाकी सारे तो पासपोर्ट बना लेंगे। हाँ जी। दरियाई घोड़े ने कहना भाई जी मैनू पासपोर्ट की लोड़ ही नहीं, मैं तो दरियाई डंकी ला के चला जा। नाज़रीन, ये थी अजीजी की फजूल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी बेचारे का रंग बिल्कुल ही जरद पिया होया है, किसी का रंग बिल्कुल चिट्टा सफेद होया है। हाय। चलो छड्डो यार, कोई होर गल करो यार, एवें लोकां दी रंग दी गल ना करो। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी जिमी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। होर सुना जिम्मी, किस तरह फिर उड़ा रहे हैं गुड़ियां? ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हाय। ਹੁਣ ਤੇ ਪੇਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਗਾਠੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यार तुसा की सिर्फ ये नहीं गाली आनी है कि आजकल बसंत है तो सिर्फ गुड़ी उठाने का काम हो रहा है और कोई काम लो नहीं आप लोगों को। आप तो इस तरह बसंत की अयाशी कर रहे हैं जैसे आप बहुत तरक्की कर गए हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं। हाय। अब आपको और कोई काम नहीं है, आपकी सारी कौम जो है उसका पेट भर गया है, हाँ। आपकी सेहत के मसाइल हल हो गए हैं, आपका एजुकेशन रेट आसमान को छू रहा है, हाय। अब आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, अब आपने सिर्फ गुडियां उड़ानी आनी, तो सखी और कोई काम नहीं से नहीं चाहना। हाय। तो क्या जिमी आप बसंत नहीं मना रहे हैं? और जी नक कटाई छोड़िया इसे समारा। और नहीं तुसा ना नक कटिया जाना है, क्या हो गया तुसा की जेडा को नक है ते किसे कैंची च भी नहीं पूरा आना। अब भराओ बरादरी च दोस्तां च बेइज्जती कराई छोड़िए तू। हाय। यार अकेली तेरी बेइज्जती हो गई है, क्या हो गया तुम्हें को? पागल हुआ है। मैं इधर आया अपनी कजन की बेटी की शादी के ऊपर, अच्छा। उसने कहा भाईजान आपको से मेरी गुजारिश है कि आपने जरूर आना बेटी की शादी पे। हाँ। मैं कहा कोई गाल नहीं, टिया पहना सांझिया होनिया ने, बिल्कुल। मैं उसकी शादी पे आया हूँ, आगे खुद ही तैयारी करके बैठा हुआ है। तो मैंने 5 लाख रुपया एक छत का दे दिया है, किराया दे दिया उसका। वो अब उधर जाके गुड पतंगबाजी करनी है। मैंने 2-3 लाख रुपए की गुडियां डोरे खरीद ली है। हाय। यार तुझको किसने कहा था कि ये सारा कुछ खरीद लो भाई? बिल्कुल। तुसा ने आन ने खुशी च कीता है ना। यार खुशी मेरी कौन, मैं क्या इधर ट्रंप आया हुआ है जरा खुशी मना रहे हो तुम? इतना पैसा तुमने बसंत पे लगा दिया। मैंने पूछा तुम्हारी भी वो कजन लगती है, हाँ। वो बेचारी माड़ी औरत है, तू ओदी टीडे ब्याह कोई हेल्प की थी है? बिल्कुल। तो इतना पैसा जो लगा दिया 7-8 लाख रुपया बसंत के ऊपर, उसके लिए शादी के लिए तुमने क्या दिया है? आगे से कहता है तो मेरे तो पैसे बसंत लग गए ने, मैं उसकी शादी का क्या करूं? यार 2000 रुपए सलामी भेजी है ना बच्ची की। ये देखो जरा, पतंगबाजी ने उठे लगाया 8 लाख रुपया हाँ। और सलामी बच्ची की भेजी है 2000 रुपया। हाय। मैं रोटी भी तो नहीं खादी ना होता है। हाय। वाह जी वाह, बड़ा एहसान की टैटू ने रोटी नहीं खादी। एक गल अगर गोगा जी करन ते चलो एहसान भी लगता है कि भाई ये ब्याह तो आ गया, इन्हें किसी की रोटी नहीं खादी, इसका मतलब है कि 200-300 बंदा और खा लेगा। तुसा रोटी नहीं खादी, इसना क्या यार टुक बनता है? नहीं तो क्या आपने वाकई बसंत नहीं मनाई? हाँ। यार बात ये है अली मुमताज साहब, आगे रमजान शरीफ आने वाले हैं। जी। हर साल इधर तुम लोग रोना रोते हो कि रमजान शरीफ के महीने में चीजें महंगी हो जाती हैं, खजूरें महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, गोश्त इवन महंगा हो जाता है। जी। यार उसके लिए प्लान तो तुमसे कई सालों से बना नहीं है, तो बीच में आप बसंत की प्लानिंग करने बैठ गए हो। बिल्कुल। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ अय्याशी है और कुछ नहीं है।
मगर जिमी गवर्नमेंट तो कहती है कि ये हमारा कल्चर है, खुशी का त्यौहार है। वो गवर्नमेंट का कल्चर होगा, आवाम का तो कोई कल्चर नहीं है। हाँ, आवाम की एक बुरी आदत है। मैंने बड़े बुजुर्गों से पूछा ये कौन सा कल्चर है, किसका कल्चर है। कोई इसको हिंदुओं से जोड़ता है, कोई इसको चाइना के साथ जोड़ता है, कोई किसी के साथ जोड़ता है। मुझे तो किसी बुजुर्ग ने नहीं बताया कि उन्होंने दादा सी जेड़ा उन्हें 2 टावा गुड्डा इजाद कीता सी। उन्हें पहली बारी डोर नु माजा लाया सी, और वो तो कोई नहीं बताता। हाय। तो ये कल्चर कौन सा है? कल्चर तो हमारा ये है कि एक दूसरे का ख्याल किया। हाँ जी। कल्चर हमारे में तो और चीजें हैं, वो आपसे हो नहीं रही हैं। बिल्कुल। बसंत वाला कल्चर सिर्फ तो याद रह गया, और सिर्फ यही जरूरी है कल्चर, और कोई कल्चर आप लोगों को जरूरी नहीं है। यार मैं तो सुनिया कि बाहर मालक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਸਾਇਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਲੈ ਆਇਆ। नहीं आखने हो एदी वजह तो 8 लाख रुपया लाया हूँ सारी डोर ते पतंगा मंजी ते रख के मैं बेचियां ने। ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ? ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੇਚ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। वो गुडियां ते डोर ने पैसे वापस आए ने ना, छत ने 5 लाख रुपए ते फंसी गए ने। ਕਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70,000 ਚ ਪਈ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਛੱਤ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਦਾ। ਉਹੀ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੀ ਕਰਾ। मेरी खुशी नहीं खातर अंदरून छत लई। ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। मेरी केड़ी खुशी नहीं खातर क्या हो गया तुसा की? कि भी जिमी लंदन तो पे आना है, चलो यार त्योहार आना पे हैप्पी हो जासी, खुश हो जासी। भाई मैं नहीं होता खुश इंज करके। ये केड़ी खुशी है? मैंने टच से सही पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज निकालनी हुई आप लोगों ने। इस गेम का अगर अली मुमताज साहब को सेहत के हवाले से फायदा है या कोई इखलाक के हवाले से फायदा है, बिल्कुल। या आप इसको कोई इल्म के हवाले से फायदा समझते हैं, हाँ। कोई एक फायदा तो मुझे इसका बताएं माँ सिवाय इसके कि एक हल्ला गुल्ला है। हाँ जी। और वो भी बदतमीजी से भरपूर हल्ला गुल्ला। वो वाला हल्ला गुल्ला जिसके साथ दूसरों का नुकसान होता है। बिल्कुल। एक बच्चे का भी अगर नुकसान हुआ है तो वो सारी कौम का नुकसान है। कौम ये क्यों नहीं सोचती है? बिल्कुल। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं कि वो काम कभी ना करो जिससे किसी एक बंदे का भी नुकसान हो। सही। जायज काम करो, वो काम करो जिससे किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल। किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो कहते जा रहे हैं जी कि बसंत बड़ा अच्छा त्योहार है, बसंत बड़ी अच्छी चीज है। ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਸੇਰ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੱਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। हाय। किसने इसको कहा था कि छत का 5 लाख रुपया दे दे? इनू किसी सियाने ने दसिया नहीं। छत का दिता काम नहीं आंदा, हाथ का दिता काम आंदा। वाह वाह। ये तो पागल हुआ है। 5 लाख रुपया छत का दे दिया। हाय। तेरी वजह तो नुकसान हुआ है। ओ यारा मेरी वजह तो नुकसान ना तो कर, छत ले लिया ना तू धोबियां ना काम शुरू कर दे, कपड़े छत ते सुकने पाई करे। राय दिहाड़ियां दे पैसे 5 लाख उस ले ने तो ता यात आस्ते मेरी छत नहीं दी। 3 दिन वास्ते वे चौथे दिन ते धौन झੱਤ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जिमी, पंजाब हुकूमत का तो ये भी कहना है कि बसंत के जरिए नौजवानों को घुटन ज़्यादा माहौल से निकलने का मौका मिलेगा। हाँ। यार वो कौन सा तरीका आपने निकाला घुटन से निकलने का? अगर एक भी हादसा होता है, कोई एक बच्चा बेचारा भी जान से हाथ धो बैठता है, तो आप घुटन से निकल रहे हैं। उनके जो घर वाले हैं वो तो सारी जिंदगी उनकी अंधेरे में चली गई है। आप तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए घुटन से निकलेंगे, वो सारी जिंदगी के लिए अंधेरे में चले जाएंगे। हाँ जी। इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये कोई काम तो नहीं है ना। पहले हम लोग अपने बच्चों को इधर लेके आते थे ये कह के कि तुमको पाकिस्तान लेके चलते हैं, उधर के अदब आदाब आपको पता चलेगा, उधर की सिकाफत का पता चलेगा, उधर का कल्चर का पता चलेगा, सही। उधर तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों के साथ मिलाएंगे, आपको पहचान होगी, तारुफ होगा अपने बुजुर्गों के साथ। हाँ। उन कहते ने बच्चियां नूं चलो तानू बसंत लैके चलिए। हाय। मैं हैरान हूं कि बसंत लिया के बच्चियां तुहाडियां ना क्या फायदा हो सी? की पता चल सी उन्हां नूं? ये पता चल सी कि इन्हां दा जेड़ा कल्चर है छत्तां दे उत्ते चढ़ के भड़का मारना है, रौला पाना है, एक दूजे नूं ओए टोए करना है।
ये कौन सा कल्चर है यार? कुछ एक फायदा बताओ तो सही ना। ये इस तरह थोड़ा ही कौमें घुटन से निकलती हैं। बिल्कुल। कौमें घुटन से निकलती हैं तालीम हासिल करके, हाँ जी। कौमें घुटन से निकलती हैं अच्छी सेहत के साथ। वो तुम लोगों से पूरा नहीं हो रहा है, घुटन से निकलना है, घुटन से निकलना है, घुटन। कौन सी घुटन हो गई? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਨੇ ਲਵੇਟਣ ਡਿਆ ਰਾਤ ਦਿਨ। बस किसे फेरी चे भी नाल लपेटिया जाए। यार ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਬਸੰਤ ਤੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ओए, की मजा आंदा है यार, तू डोर दे उत्ते खीर लाई हुंदी है। इस बात का तुझे मजा आता है? तुमने कुछ छोटे गोश्त की पतंगे बनवा ली हैं। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा, बखुदा पता नहीं मैं कम अकल हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या होता है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता। कोई एक फायदा होता हो ना, या ते ना तुसी इंजन कर दियो ते ताडी बगल विचों सूइयां थल्ले डिग रहीਆਂ। तुसी सारा दिन पतंग चढ़ा के ते थल्ले जाके दस दियो आज मैं 2000 सूइयां बनाईਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਰਿਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। देखो ना जरा, अब आपको रिच खुद बता रहा है कि सिर्फ करने की बातें नहीं है। आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो। यहाँ पे लाखों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पैसे ना होने की वजह से रोटी पूरी नहीं खा रहे। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सारे रिसर्च वाले बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क हो चुका है जहाँ पे सेहत की जो रेशो है वो इंतहाई नीचे चली गई हुई है। सेहतमंद आप देखें, आपके खिलाड़ी जब निकलते हैं, इधर प्लेयर जो निकलते हैं ग्राउंडां दे विच, जी जी। उन्हां दियां लत्तां वेख के तरस आना है यार। हाय। आप दूसरे मुल्कों के लोग देखो, उनके जो एथलीट्स बाहर निकलते हैं, उनके जो प्लेयर्स बाहर निकलते हैं किसी भी मैदान के अंदर, कितने सेहतमंद नजर आते हैं। वैसे भी हम बाहर, मैं तो घूमता रहता हूं दूसरे मुल्कों के अंदर, इतनी सेहतमंद कौम नजर आती है, लोग इतने सेहतमंद नजर आते हैं। इत्थे हर दूसरा बंदा मैनू विंगा चबाई नजर आंदा है। कोई ऐना फुल गया होया है, कोई ऐना रह गया होया है। किसी बेचारे दा रंग बिल्कुल ही जरद पिया होया है, किसी दा रंग बिल्कुल चिट्टा सफेद होया होया है। हाय। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। बसंता मना रहे ने कोठियां दे उत्ते चढ़ के। ਹਾਏ। अद्धी कौम दियां कमीजां लुआओ ते थल्ले पार्टी बनैन पाई होंदी। मैं तो हैरान होता हूं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किस तरह बच्चों को लगा रहे हैं। आधी कौम दे अड्डे बच्चियां ने ते वड्डे भरा दे कपड़े पाए होंदे ने। हाय। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ कपड़े छोटे कर दे। सब बच्चों को कपड़े लेके देने के लिए आपके पास बजट नहीं होता। हाँ। आप चले हो बसंत मनाने के लिए, यार हद हो गई है। जिमी, तुम्हारे ख्याल में क्या बसंत के इवेंट से मईशत को भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा? यार आप माशाल्लाह सहाफी हो अली भाई। अब बसंत दे 3 दिन लंघदे ने ना, ते मैनू दसना जरूर है कि किन्ने अरब डॉलर का फायदा होया तुहानू। कौन से फायदे की बात करते हो यार? ये 3 दिन का बसंत है ना, क्या हो जाएगा? लोग जो ये इस बिजनेस में पड़े भी हुए हैं, क्या हो जाएगा? अब देखो वही हो रहा है जो आपके रमजान शरीफ में होता है, जो आपके ईद शबरात पे होता है। हजार रुपए की डोर है, वो 28 हजार की बेच रहे हैं। बिल्कुल। जो आपके डोरा गुड्डियां ते पतंगा ने 100 रुपया चान वालियां, वो लोग 15-20 हजार रुपए च बेच रहे ने। गुड्डा 2-2 हजार 3-3 हजार का बिक रहा है। क्या हो रहा है? आप क्या लोगों को सिखा रहे हो? इस तरह कौम ठीक नहीं हो सकती, ना ही खुशहाल हो सकती है। ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ। इतनी माड़े 5 लाख ना क्या करना है? दुआ कर सकना मैं तो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब यहाँ के सिस्टम इस तरह बिगाड़ दिए गए हैं कि लोग बेचारे फेडअप हो जाते हैं। तो आज किस मसले को डिस्कस करना चाह रहे हो अजीजी? अच्छा जी, एक इंतहाई अहम इशू है जिसकी तरफ मैं अहले हुक्मरानी की तवज्जो चाह रहा हूं।
वाह, जी इसलिए मैंने सोचा कि इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है ना जी, जी जी उनको ऐसे ऐसे मसाइल दरपेश हैं कि वो बेचारे फेडअप होते जा रहे हैं। और अब ये हुकूमतों से फेडअप होते हैं, फिर मुआशरे से फेडअप होते हैं, फिर वो मुल्क से फेडअप होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह, मुल्क तो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही कुर्बानियां दे के हासिल किया हुआ है। अब यहाँ के सिस्टम इस तरह बिगाड़ दिए गए हैं कि लोग बेचारे फेडअप हो जाते हैं। तो आज किस मसले को डिस्कस करना चाह रहे हो जीजी? मसला ये है जी कि पंजाब में एक डिपार्टमेंट है, बल्कि एक बोर्ड अथॉरिटी है, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल से मुतल्लिक कोर्सेज का सर्टिफिकेट जारी करता है। जी उसका नाम है पंजाब मेडिकल फैकल्टी, जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्स और डिप्लोमे करवाता है। सही उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे हैं जहां बच्चे और बच्चियां नर्सिंग वगैरह के कोर्स कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी खबर ये है कि जून 2025 में जिन बच्चों के स्टूडेंट्स के इम्तिहान हुए थे, जी जी उनका अभी तक यानी फरवरी के पहले हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आया। अब ये जो बच्चियां बेचारी नर्स का कोर्स करती है ना जी, नर्सिंग का, हाँ जी सर कई बड़ी ही मजबूरी से करती हैं। उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते। वो अपने घर वालों को, अपने वालदैन को, बहन भाइयों को या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ये नर्सिंग का कोर्स करके तो अस्पताल में नर्स लगती है। बिल्कुल सही सर। अब आप देखें कि जिन बच्चियों ने 2025 जून में इम्तिहान दिया था, उनका 2026 फरवरी के पहले हफ्ते तक, बल्कि अब तो पहला हफ्ता तो मुक गया, रिजल्ट भी नहीं आया। अब देखें जरा कि 2-3 महीनों में तो मैट्रिक एफएससी के रिजल्ट भी आ जाते हैं, जहां लाखों बच्चे पेपर देते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा चलें जी, देर सवेर हो गई, को बड़ा बड़ा मसला बन गया है जो 8 महीने गुजरने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। हाँ अब उससे भी शर्मनाक बात यह है कि उन बच्चों को या उनके स्कूल वालों को असल मसला भी नहीं बताया जा रहा। अच्छा और अदारे के 4-5 राब्ता नंबर जो वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, हाँ जी सर हाँ जी उन पर किसी को जवाब भी कोई नहीं दे रहा। हाय और उन कई स्टूडेंट्स के पास फोन कॉल्स की हिस्ट्री मौजूद है, जो उन्होंने फोन नंबर मिला मिला के कोशिशें की हैं उधर जी, से जी। कोई इंफॉर्मेशन लेने की, हाँ जी किसी ने नहीं फोन उठाया। हर नंबर पर 8-10 बार कॉल करने के बावजूद एक भी कॉल रिसीव नहीं होती। अच्छा, इन नंबरों पे हमने खुद भी, हमारे रिसर्चर जो हैं नूरुल अमीन साहब, जी जी माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, वैसे लगता है कि जिन्हें ऊँट गुआचे है। उन्होंने खुद भी कई दफा उन नंबरों पे फोन किया है, कोई नहीं उठाता। अच्छा यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनके सीरियस होने का और जिम्मेदार होने का आप खुद फैसला करें कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं इन अदारों के अंदर। भाई ये दफ्तर कोई राजनपुर या कोई फल या सखर की तरफ नहीं है, यहां लाहौर में इसका सेक्रेटेरिएट है। और ये सब इस वजह से हो रहा है कि ऐसे अदारों से पूछने वाला ही कोई नहीं। हाँ जी देखे ना, पूरे मुल्क में और कामों में लल्लो तल्लो में पड़े हुए हैं। हाय जो अहम काम हैं, जो बच्चों की जिंदगी के मसले हैं, उनके मुस्तकबिल के मसाइल हैं, जी वो कोई हल करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, बिल्कुल। अच्छा, अब हमने अपने जो मुतल्लका रिपोर्टर हैं हमारे दुनिया टीवी के, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जरा इनके सेक्रेटरी से राब्ता करके मालूम करें सही कि मसला क्या है। क्या है? हाँ जी उन्होंने बताया जी, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज किया है, अच्छा इसलिए रिजल्ट में ताखीर हो गई थी, लेकिन हम 1-आध हफ्ते में रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। जी दसो हाँ भाई, सिस्टम तो सेंट्रलाइज करने से काम आसान होता है, यहां लेट हो रहा है, बिल्कुल और वो भी 8 महीने लेट। सही अब ये सेक्रेटरी साहब ने तो अपना मौका बता दिया है, जी लेकिन हमारे सोर्स ने बताया है कि पर्चों पर फर्जी नंबर लगाने के दौरान, जिन्हें हम फिक्टिशियस नंबर भी कहते हैं, हाँ वो लगाने के दौरान पर्चे मिक्स हो गए हैं। और अब कोई पता नहीं चल रहा कि स्टूडेंट्स का असल रोल नंबर क्या था। क्या है? इस खबर की हकीकत तो अदारे वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि रिजल्ट अनाउंस कर दें। कर दें हाँ खुदा के वास्ते रिजल्ट अनाउंस कर दें। बिल्कुल बच्चियों के मुस्तकबिल का मसला है, उनके बात। मुआश का मसला है, उनके घर में रोटी का मसला है। बिल्कुल सही
अच्छा, ये सारे मसाइल सिर्फ एक मसले की वजह से पैदा होते हैं, वो है गुड गवर्नेंस। और अगर कोई करना चाहे तो ये कोई इतना को अफलातून काम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नेंस जो है ये कोई इतना बड़ा को पहाड़ नहीं टाना होता, वक्त देना होता है, तवज्जो देनी होती है। बिल्कुल सही। आप देखें ना, ये डॉक्टर उस्मान अनवर जो अब ट्रांसफर हो गए हैं आईजी साहब, यार 3 साल आईजी रहे हैं पंजाब पुलिस के। आप कभी पुलिस एहलकारों से उनकी बातें सुने, शहीद पुलिस वालों के लवाहिकीन से बातें सुने, बीमार पुलिस वाले उनकी बातें सुनाते हैं, तो लगता है कि यार एक बंदा सारे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन संभालने के साथ साथ इतने सारे काम कर गया, वाह। और वो भी सिर्फ 3 सालों में। उनके दौर में जहां क्राइम रेटिंग में कमी आई है, वहां पे सियासी हवाले से उनको बहुत अच्छा भी कहा जाता है, कई लोग उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, मगर पुलिस इस्लाहात अपने डिपार्टमेंट में जो उन्होंने तब्दीलियां की हैं जी जी और जो इस्लाहात लाई हैं, वो जरा सुने कितनी हैरान कुन है। जी। पुलिस इस्लाहात और फिर क्राइम रेट में कमी जो है, ये तो उनके क्रेडिट पे हैं, वो जी, तो जी। सारे डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उनका असल काम अपनी फोर्स को मोटिवेट करना, वाह। उनकी महकमाना मसाइल हल करना और उनके बीवी बच्चों को, उनके वालिदैन की निगहदाश्त का जो सिस्टम है उसे फाल करना है, बहुत अच्छे। जिस पर महकमे के लोग उनके जाने के बाद उन्हें दुआएं दे रहे हैं। जो पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड था ना जी, वो 7-8 अरब रुपए के करीब करीब था। जी जी उनकी कोशिशों से वो वेलफेयर फंड बढ़ा के 18 से 19 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। अच्छा, वाह। और उन्होंने कहा भाई ये मेरे महकमे के लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने बेचारे जो जख्मी हुए हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, इनको देखना मेरा काम है, सही, हमारे महकमे का काम है। वाह। फंड देखे ना कितना ज्यादा बढ़ाया। हाँ जी सर। फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ हुकूमत से ही फंड नहीं बढ़वाया, जी जी 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो फंड है ना जी, वो रोजाना ये पुलिस के महकमे की जेब से उस वेलफेयर में लगाया जा रहा है, अच्छा, वाह जी, अपनी तनख्वाहों से। वाह। फिर ये जो महकमा है ना जी, इसकी सबसे बड़ी नहूसत और प्रॉब्लम क्या थी, मुझे चूंकि बहुत बेहतर पता है, मेरे वालिद साहब भी इस महकमे में थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। प्रमोशन, ये जो सीएसएस करके आने वाले अफसरान थे, इनकी प्रमोशन का तो एक सिस्टम बना हुआ है ना जी, जी 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 क्योंकि मुल्क का सारा सिस्टम ही उनके हाथों में है। हाँ जी, ये जो सीएसएस करके आने वाले लोग हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल तो वो अपने सिस्टम तो इनके ठीक होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो नीचे वाले बेचारे जिन्हें हम प्रमोशन ही कहते हैं ना जी, प्रमोटी, जी 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 उन बेचारों का कोई सिस्टम ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी। इस हवाले से उन्होंने ऐसा जबरदस्त काम किया कि 28 से 30 हजार मुलाजमीन और अफसरों की प्रमोशन हुई है। अच्छा, वाह। जी जी, जो बेचारे रिटायर होने वाले हो गए हुए थे, बुढ़े हो गए हुए थे, मेहनत कर करके बेचारे ड्यूटी दे दे के कई कई सालों से उनकी प्रमोशन ही नहीं थी हो रही, ओहो, और सारे अफसरों की उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग कर दी है। अभी आपने ये एक वायरल हुई है वीडियो सोशल मीडिया पे, ये फैसलाबाद के जो आरपीओ हैं सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, जी जी वो किस तरह डांट रहे हैं मुलाजमीन को जिन्होंने एक खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी, बदतमीजी का मुजाहरा किया या उनके साथ बहस करने की कोशिश की, किस तरह उन्होंने डांट दिया। हाँ बिल्कुल, और साथ साथ ये अफसरान जो हैं, ये अपने माताहत लोगों का ख्याल भी बड़ा रख रहे हैं। सही, यही जो सुखेरा साहब हैं, इन्होंने अपने वहां पे जो माताहत लोग हैं, अपने मुलाजमीन, जी जी उनके जो बच्चे हैं, उनको मशहूर तालीमी अदारों में दाखिल करवाया है, मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए उनको भेजा है। वाह, फिर खुली कचहरियां लगा रहे हैं, उधर सबके सामने अपने मुलाजमीन को डांटते हैं, उसी वक्त एक्शन लेते हैं, मुअत्तल करते हैं, बर्खास्त करते हैं। अगर कोई भी मुलाजम जो है वो किसी शहरी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है तो उसी वक्त उस पर एक्शन लिया जाता है। वाह जी। यार आदमी करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, सब कर सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।